नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली में औषधि नियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और भारतीय औषधि महानियंत्रक राजीव रघुवंशी ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय स्मार्ट विनियमन, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पाद प्रदान करना है। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी के दौरान भारत न केवल स्वास्थ्य लचीलेपन में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा, बल्कि दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी भूमिका की भी पुष्टि की। भारत ने अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का विस्तार किया और घरेलू और वैश्विक दोनों मांगों को पूरा करने के लिए वैक्सीन उत्पादन को भी बढ़ाया। दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत ने महत्वपूर्ण दवाओं और टीकों तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। In India, Central Drug Standard Control Organization (CDSCO) is national regulatory agency. It has a long history and has developed robust system for approving safe and efficacious drugs and medical devices in the country and for export to more than 200 countries in the world. Availability of quality medicine at affordable price is at the core. 8 drug testing labs are operational today and two in the pipeline. 8 mini testing labs are operational at different ports for a quick testing and release of drugs and raw materials being imported. In addition, 38 state drug regulators testing labs are operational altogether. More than 100,000 samples are being tested every year under the regulatory system mechanism. More than 95% of the regulatory process currently have been digitalized at the CDSO, bringing transparency and increasing trust among stakeholders. Considering the importance of medical devices and healthcare delivery, medical device industry in India is also being regulated. Drugs rules have been amended to make good manufacturing practice guidelines more comprehensive and at par with the WHO GMP guidelines. To make drug supply chain robust, it has made mandatory to provide barcode to quick response code, QR code, on the top of 300 brands of drug products. Similarly, QR code is mandatory on all API packs either being imported or manufactured in India. India remains fully committed to advancing global health. We believe in 3 S's. That is skill, speed and scale. And by focusing on these 3 aspects, we have been able to meet the increasing demand for pharma products while adhering to global quality standards without any compromise. We are prepared to address pressing challenges from the antimicrobial resistance to ensuring equitable access to life-saving treatments. तो वहीं भारतीय औषधि महानियंत्रक राजीव रघुवंशी का कहना है कि भारत दुनिया भर के 200 से अधिक देशों को दवाई, टीके और चिकित्सा उपकरण प्रदान कर रहा है। 11 देशों ने पहले ही भारतीय फार्माकोपियों को अपने मानकों के रूप में मान्यता दे दी है। अब हम पिछले कुछ वर्षों से हर साल औसतन 100 वैश्विक नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दे रहे हैं। भारतीय एनआरए कार्टी सेल थेरेपी, एमआरएनए वैक्सीन और सॉफ्टवेयर जैसे नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों की समीक्षा कर रहा है और उन्हें चिकित्सा उपकरणों के रूप में भी मंजूरी दे रहा है, जो दर्शाता है कि हम निरंतर उन्नयन के दौर से गुजर रहे हैं। This conference is important for us because of many reasons. It is a platform where we reassure India's commitment towards global public health. India, as some of you know, is supplying drugs, vaccines and medical devices to more than 200 countries world over. Since we are operating on global platform as one of the important stakeholders of healthcare value chain, building and sustaining trust of international stakeholders is very important for us. It is worth mentioning some of the recent developments related to Indian drug regulatory system which motivates
us and validates that we are moving in the right direction. First and foremost is the recently concluded NRA assessment for vaccine regulatory system, where India has been declared as ML3, and thank you WHO for doing this, and thank you to the whole team who worked towards this. And let me also tell you, it was not easy. It was a difficult audit and review. Then we recently got associate membership of IMDRF, an important development for our fledgling medical device industry. Thank you, the committee of IMDRF, for giving us associate membership. Our Indian Pharmacopoeia got inducted into Pharmaceutical Discussion Group alongside USP, European Pharmacopoeia, and Japanese Pharmacopoeia. 11 countries in the world have already recognized Indian Pharmacopoeia as their book of standards. That's a huge achievement for the country and the Pharmacopoeia. Now we are approving on an average 100 global clinical trials every year for last couple of years, and that shows the faith of international research organizations and pharmaceutical companies on the regulatory system which we are developing and developed till now. On our part, Indian NRA is reviewing and has approved latest technology-based products like CAR-T cell therapy, mRNA vaccine, software as medical devices, which shows that we are going through continuous upgradation of skills and capacity within our regulatory system. Recently, we notified 6 countries from where if products of 5 designated categories are applied for approval in India, we will rely on approval by NRAs of these countries, and we will not ask for repeat clinical trial for getting approval in India. A huge milestone for us. This shows our intent towards bringing latest therapies for patients sooner than later. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। रुड़की में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी रेल हादसे की बड़ी साजिश का मामला सामने आया है। रुड़की के पास ढंडेरा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर मिला, जिससे हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी ट्रेन ट्रैक से नहीं गुजरी। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर की सूचना मालगाड़ी के चालक ने रेलवे के अधिकारियों को दी थी। सूचना पर लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लिया। तो वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि स्टेशन अधीक्षक की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि रुड़की रेलवे स्टेशन कई मायनों में उत्तराखंड के लिए काफ़ी अहम है। रेलवे स्टेशन पर 80 से अधिक ट्रेनों का स्टॉपेज है। रुड़की रेलवे स्टेशन अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। इससे पहले भी इसे उड़ाने के धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, लेकिन अब रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली गैस सिलेंडर मिलने से तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। चर्चा ये है कि कोई भी बड़ी साजिश हो सकती है। सिलेंडर के मध्य एक छोटा सिलेंडर खाली पाया गया था, जिस संबंध में स्टेशन अधीक्षक की लिखित तहरीर पर अंतर्गत धारा 150 का रेल अधिनियम के बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी एकत्रित की। देखिए, अभी इस संबंध में कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी करना तो समीचीन नहीं है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से जानकारी एकत्र भी की जा रही है और निरंतर सतर्कता बरती जा रही है। रेल और सिविल पुलिस दोनों के स्तर से निरंतर पेट्रोलिंग की कार्रवाई वहां अमल में आती रही है और आगे भी ये पेट्रोलिंग निरंतर जारी रहेगी। सिलेंडर खाली था और छोटे आकार का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, रुड़की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा में हमारे प्रवासी श्रमिकों के अमूल्य योगदान को पहचानते हैं। हमें उन कमजोरियों को भी स्वीकार करना चाहिए जिनका वो विदेशी धरती पर सामना करते हैं। हमारे मिशनों विशेष रूप से खाड़ी देशों में समर्पित श्रमिक हताशे हैं जो श्रम और अन्य शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करते हैं। मुझे जानकर खुशी हुई कि संशोधित ई माइग्रेट पोर्टल में 24 घंटे चलने वाले बहुभाषी हेल्पलाइन नंबर भी हैं, ताकि वो उन समस्याओं का समाधान कर सके जिनका कभी कभी तत्काल समाधान की आवश्यकता होती है। So
friends, let me say it gives me great pleasure to launch a revamped version of the eMigrate portal. And it is more than just a digital platform. It is actually a beacon of hope. It is a symbol of our commitment to protecting the rights and dignity of our workers in foreign lands. The enhancements in the portal that we saw in the presentation actually reflect new realities and transformations which we are all witnessing insofar as global migration dynamics are concerned. There is a global need, and others have spoken about it. There is a global need for workers who have domain-specific knowledge in their particular fields. For several reasons, this need for a well-trained workforce in different geographies is only going to grow further. This is clearly reflected in the pace at which we have undertaken negotiations with different countries on migration and mobility since 2015, and also in how the mobility ecosystem of India itself has been taking shape. Now, when I speak about the mobility ecosystem, I refer here to the strengthening of the entire paraphernalia associated with a citizen traveling abroad. For instance, in the last decade, our passport issuance has almost doubled. And that's primarily because we view and approach the world today as a global workplace. Facilitating those who travel abroad for studying or who are residing abroad and looking after their welfare and well-being at all times, especially during difficult situations, is today a very central objective of our foreign policy. While we recognize that the invaluable contributions of our migrant workers to India's economy and global reputation, we must also acknowledge the vulnerabilities that they face in foreign lands. Our missions, especially those in the Gulf, have dedicated labor attaches which ensure redressal of labor and other grievances. I am pleased to note that the revamped eMigrate portal also has 24/7 multilingual helpline numbers to attend to issues that they face which sometimes require urgent solutions, in addition to features for registering feedback for redressal. केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने ई माइग्रेट मोबाइल ऐप V2.0 के लॉन्च समारोह में कहा, पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के निरंतर मार्गदर्शन में इस ई माइग्रेट पोर्टल संस्करण 2 के लॉन्च पर अपनी स्वागत टिप्पणी देने में मुझे खुशी हो रही है। विदेश मंत्रालय द्वारा इस आईटी पहल के उद्घाटन के साक्षी बने सभी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजदूतों, प्रतिष्ठित मित्रों, सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है, जो गतिशीलता प्रक्रिया में क्रांति लाने के हमारे प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज से 2 साल पहले मैंने और जयशंकर जी ने, उस वक्त मैं फार्मास्यूटिकल विभाग का मंत्री हुआ करता था, तो फार्मास्यूटिकल विभाग में एक जनऔषधि केंद्र चलाया जा रहा था जिसमें देश में 10,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र के द्वारा एफोर्डेबल और क्वालिटी सस्ती मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है। तो क्या दुनिया के देशों में हम सहयोग करके हमारे मित्र देशों को हम ये सुविधा क्यों न दें? मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दुनिया की कई कंट्री में इंडिया के जनऔषधि केंद्र का मॉडल वहां विदेश मंत्रालय की एफर्ट से चालू हो चुका है। दुनिया को मदद करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ये हमारा संस्कार है, हमारा कल्चर है। हम कुछ बेस्ट करते हैं तो दुनिया उसका लाभ कैसे ले सके? हमारी बेस्ट टैलेंट है, हमारा डेमोग्राफी का लाभ दुनिया कैसे ले? इस एफर्ट का ये नतीजा है कि हम जॉइंट में काम करें, एक दूसरे के सहयोग में काम करें, हमारी बेस्ट व्यवस्था दुनिया में इंप्लीमेंट करके उसको सहयोग करें। दुनिया में जो कुछ बेस्ट है उसका इंडिया में भी इंप्लीमेंटेशन हो। उसका नतीजा है आज देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। इन नया भारत की, इन नई अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे देश के यूथ के लिए,
ए टाइप के पोर्टल ई माइग्रेट V2 जो दुनिया में अपनी करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। उसका व्यक्तिगत जब जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी उसका क्या, किसके द्वारा जाना, जो 2000 से अधिक विदेश मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी है उसकी सूची है, आपको जाना है, सब हो गया तो किसके द्वारा जाना, उसके द्वारा जाना। अब गए हैं तो हमारे विदेश मंत्रालय के भी संज्ञान में है क्योंकि पोर्टल के द्वारा आप गए हैं, वहां पर आप रजिस्टर है। हमारा विदेश दूतावास में भी ये इंफॉर्मेशन है ताकि आप कोई भी क्राइसिस की स्थिति में आप वहां कॉल करके आसानी से सहयोग ले पाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। ऐसा एफर्ट आने वाले दिनों में परस्पर देश का सहयोग भी बढ़ाएगा और देश के युवाओं की अपॉर्चुनिटी को भी एक परिप्रेक्ष्य मिलेगा। इस दृष्टि से मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण एफर्ट है। ये एफर्ट के साथ जुड़े हुए सभी ऑफिसर्स और इस टीम को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये टीम के लीडर के रूप में आदरणीय मंत्री जी को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। अगली खबर चंपावत से है, जहां बाराकोट में 6 दिवसीय लड़ी धुरा महोत्सव 2024 का विधिवत उद्घाटन विभिन्न विद्यालयों एवं दलों की सांस्कृतिक झांकियों के साथ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक कुशाल सिंह अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि उप ज्येष्ठ प्रमुख बाराकोट नंदा बल्लभ बघौली ने दीप प्रज्वलित कर किया। दोनों अतिथियों ने महोत्सव समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भी भरोसा जताया है। कमेटी के द्वारा विधायक कुशाल सिंह अधिकारी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों, सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक दलों के द्वारा एक से एक बढ़कर एक शानदार झांकियों का प्रदर्शन किया गया। वहीं सांस्कृतिक झांकियों के माध्यम से समाज को प्रेरित करने और संगठित करने वाले संदेशों को प्रचारित और प्रसारित भी किया गया। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन आज हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान खुशाल सिंह अधिकारी जी के द्वारा किया गया है। लड़ीधुरा महोत्सव 2012 से निरंतर क्षेत्र में सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन में, शैक्षिक एवं खेल कार्यक्रमों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसमें हमारे क्षेत्रीय युवाओं द्वारा, मातृशक्ति द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया जाता है। मेरा पुनः समस्त क्षेत्रवासियों से विनम्र अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें ताकि हम इस महोत्सव को और अधिक बुलंदियों पर पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, चंपावत। केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार अजय टम्टा ने रविवार को सैनिटोरियम से रातीघाट राष्ट्रीय राजमार्ग हरतपा बैंड से प्रस्तावित कैची बाईपास मोटर के संबंध में रातीघाट में बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कैची धाम में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण भवाली, कैची, रातीघाट आदि इलाकों में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जाम से निजात पाने के लिए एनएच के साथ वार्ता और सर्वे किया गया। साथ ही सैनिटोरियम से रातीघाट बाईपास का पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है, जल्दी इसमें डामरीकरण किया जाएगा। धाम के अंदर जो बहुत समय से, लंबे समय से लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और पर्यटकों का और तीर्थाटकों का लगातार कैची धाम आने की वजह से आगे हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जो कनेक्टिंग है वो घंटों घंटों तक लोग जाम में फंसे रह रहे हैं। बहुत कष्टदायक स्थिति हो रही है। पहले भी हमारे एनएच विभाग के द्वारा इस पर कई बार सर्वे की गई है और कई प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। आज भी उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए हमने NH 87 एक्सटेंशन जो 2 लेन है, जो जोलीकोट से लेकर खैरना तक है, इसके कनेक्टिंग के लिए अल्टरनेट रोड के लिए जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के प्रयासों से जो हमारा सैनिटोरियम का जो पहला चरण था, काम था दोनी खाल तक,
वो लगभग 8 किलोमीटर का काम हमारा चल रहा है। अगले कुछ महीनों में उसका डामरीकरण का काम भी खत्म हो जाएगा। नया जो हमारा प्रथम चरण सेंक्शन है जो 11 किलोमीटर का है, जो दोनी खाल से लेकर के हमारे NH पाडली तक और जो NH हाईवे तक जो ज्वाइंट होगा, इसका भी हमारा 11 किलोमीटर का फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हमारा फाइल चल रही है। बहुत जल्दी उस पर भी कार्रवाई होगी। मेरे सभी अधिकारियों से, जिला प्रशासन से सबसे बात हुई है। काम करवाने के लिए कहा गया है, तो माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया है कि जल्दी जल्दी इसमें काम करे, जिससे कि आगे लोगों के जो जाम है उससे निजात मिले। काफ़ी हमारे मरीज भी फंस जा रहे हैं और कई लोगों की ट्रेनें छूट जा रही हैं, उससे उन लोगों को निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, नैनीताल। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।